Hello students, Jai Hind, Vande Mataram. Once again welcome back to your class Ravi Sarji Maths, the easiest and finest way to learn the concepts of mathematics from standard 9 to 12. Students, in our today video lessons of probability we are going to practice basic miscellaneous questions. Students, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget to hit the bell icon of your channel. Okay students, now moving to the first question. A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. Is that probability that all will be blue, at least one will be green? Students, a box contains 10 marble. एक बॉक्स के अंदर 10 marbles हैं, 20 blue marbles हैं and 30 green marbles हैं. 5 मार्बल्स आपको क्या करने हैं, रेंडमली ड्रॉ करने हैं बॉक्स में से. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, सारे मार्बल्स ब्लू हों. सेकंड है कि आप मार्बल्स ले रहे हो तो एटलीस्ट वन ग्रीन हो, एक से ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक you should clear the questions. You have understood the questions. What you have to find out over here and how you can find out. Okay, let us start over here. First of all, total number of marbles are 10 plus 20 plus 30 is equal to 60. Okay, the number of ways of drawing 5 marbles is what we can write, what out of 60 marbles 60 C5. स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 60 मार्बल में से आप 5 मार्बल्स कितने तरीके से रिमूव कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. ऑल द मार्बल्स विल बी ब्लू. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल द मार्बल्स विल बी ब्लू इफ़ वी ड्रॉ 5 मार्बल्स out of 20 blue marbles. So we can write what, 5 marbles drawing out of 20 marbles. So numbers of draws out of 20, 5 marble out of 20, 5 C2. 20 marble में से 5 marbles को आप 5 C2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. So probability of that all the marbles will be green, blue. All the marbles क्या होनी चाहिए, blue. So m by n का formula, so 20 C2 by 60 C2. Now the second one is क्या फाइंड करना, at least one will be green. तो आप blue और red का फाइंड करके 1 में से माइनस कर दो. So number of way in which drawn marble is not green, it means that should be red and blue. क्या होंगे, रेड और ब्लू होंगे. सो 20 प्लस 10 C5 मार्बल्स लेने हैं, सो 30 C5. सो 30 C5. सो नंबर ऑफ मार्बल्स इन ग्रीन, सो 30 C5 by 60 C5. That at least one marble is green. सो ग्रीन फाइंड करना है. सो 1 माइनस 30 C5 divided by 60 C5. So students, 30 C5 divided by 60 C5 can be solved, otherwise you can let it. Okay students, once again let us see. So total number of marble is what, 60. Number of drawing 5 marbles from 60 marble is 65. All the drawing marbles will be blue. जितने भी marbles आप draw कर रहे हो will be blue. So 5 marbles out of 20 marbles. So 5 blue marbles can be drawn from 20 blue marbles. तो 5 blue marbles 20 blue marbles 5 C2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. Similarly students, you can solve this problem. Now moving to the next question. 4 cards drawn from well shuffled deck of 52 cards. 4 cards are drawn from well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade card? Okay students,
4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको 52 कार्ड में से 4 कार्ड्स को क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, अब वो 4 कार्ड में से 3 जो कार्ड हो वो डायमंड्स हो और 1 कार्ड जो हो वो स्पेड हो, तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, लेट अस सी द सॉल्यूशन। लेट अस सी नंबर ऑफ ways of drawing 4 cards from 52 cards। 4 कार्ड्स लेने हैं आपको 52 कार्ड्स में से। सो 5C4 तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर 13 डायमंड एंड 13 स्पेड। तो 52 कार्ड में से 13 कार्ड डायमंड होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। 3 डायमंड और 1 स्पेड लेने हैं। सो 13C1 इंटू 13C3, तो 3 डायमंड है और 1 स्पेड है, तो इतने तरीके से आप कार्ड को ड्रॉ कर सकते हो। थस the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade, so we can write 13C3 into 13C1 divided by 52C4। so students आप इसको NCR के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे कि 5C4 है तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली you can solve these things in a very easy manner। so ये तो already you have studied in standard 11, तो कैसे आप NCR और NPR के को solve करते हो। okay students, now moving to the next question। okay, in a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded। what is the probability of not getting prize if you buy 1 ticket, 2 ticket and 10 ticket। एक 10,000 की लॉटरी की टिकट सोल्ड किया गया, 10 इक्वल प्राइजेस भी दिए गए। सो प्राइज़ नहीं मिला, अगर 1 टिकट बाय करने को प्राइज़ नहीं मिला, 2 टिकट और 10 टिकट जो परचेस किया है उसको प्राइज़ नहीं मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। okay, let us see the solution। total number of tickets, so total number of tickets sold, how much, how many, 10,000। now number of prizes awarded 10। so first question is 1 ticket if we buy 1 ticket, right students, if we buy 1 ticket, so probability of getting price, so 10 by 10,000, so 0 cancel, so 1 by 1000। similarly not getting price, so we know that 1 minus p of getting a price, so 1 minus 1 upon 1000, so we can calculate, so 999 by 1000। second, for 2 tickets if we buy 2 tickets, so number of tickets not awarded, number of tickets not awarded means prize are not awarded, so 10,000 minus 10, so 9,090, so p not getting price, so not getting price is what, 9,090, there should be some mistakes because 2 tickets, so there should be 9,090, so we can make correction over here, 9,090 by C2 upon 10,000 C2। so if we buy 10 tickets, अगर हम 10 tickets परचेस करते हैं, so probability of not getting price, so 990 C10, right, so 10,000 C10। so again आप इसको किसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो,
NCR का, सो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, आपको सिंपली ये क्वेश्चंस में क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड 10,000, नंबर ऑफ प्राइज अवॉर्डेड 10, सो फर्स्ट में गेटिंग प्राइज, सो 10 बाई 10,000, 1 बाई 1000, नॉट गेटिंग प्राइज, सो 1 में से रिमूव कर दो। इफ़ यू बाई 2 टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स नॉट अवॉर्डेड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, you can solve these things. 4, out of 100 students, 2 sections of 40 and 60, 100 students के 2 section है 60 and 40 are formed if you and your friends are among 100 students. What is the probability that you both enter the same section, you both enter the different section? Students, इसमें ऐसा है कि 100 students हैं और 100 स्टूडेंट में से 2 सेक्शन बनाए गए 40 और 60 की, तो आप और आपका फ्रेंड एक ही सेक्शन में हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप और आपका फ्रेंड अलग अलग सेक्शन में हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, 2 sections are there, 40 and 60. You will have to keep it in 2 sections, 40 and 60 के 2 sections है। ओके, लेट अस स्टार्ट। माई फ्रेंड एंड आई, मैं और मेरा फ्रेंड, आर अमोंग द 100 स्टूडेंट्स, मैं और मेरे फ्रेंड 100 स्टूडेंट में से। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। सो 100 में से हम 2 स्टूडेंट्स दो तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज 2 सेक्शन है यहाँ पे। सो 100C2। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, द 2 of us will enter in same section। हम दोनों जो हैं वो सेम सेक्शंस में एंटर हो रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो इफ़ बोथ द 2 of us will enter the same section, if both of us आर अमोंग 40, अगर 40 में होंगे तभी हम सेम सेक्शन में आएंगे। सो 40 आर अमोंग 60, 40 में हो या 60 में हो तभी हम दोनों साथ में आएंगे। सो नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ ऑफ अस एंटर द सेम सेक्शन, हम दोनों एक ही सेक्शन में एंटर किए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 40C2 प्लस 60C2 डिवाइड बाई टोटल कितने होंगे 100C2, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, हम दोनों अगर सेम सेक्शन में एंटर कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, सो वी कैन राइट 40C2 प्लस 60C2 डिवाइड बाई 100C2। ओके स्टूडेंट्स, so 40C2 can be written as 40 factorial 2 factorial 40 minus 2 factorial, and 60 can be 60 factorial 2 factorial 60 minus 2 factorial. So just you can simplify these things। 40 factorial को आप राइट कर सकते हो 40 into 39 into 38, बिकॉज यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 40 minus 2 है, सो यू विल राइट 38। सो 2 factorial into 38 factorial 40 minus 2 करने पे, एंड इसको राइट करते हैं। पहले 100 को राइट करोगे 100 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 100 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो स्टूडेंट्स, नाउ सिंप्लीफाइंग दीज थिंग्स, 60 फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई करोगे 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल, अदरवाइज 60 फैक्टोरियल ही रहने दो। 60 फैक्टोरियल इंटू 59 एंड 58 फैक्टोरियल। सो 58 कैंसल, 38 कैंसल, and similarly these things will be cancelled. Now here we are writing 100 factorial को 100 into 99 into 98 और 2 factorial as 2 into 1 होता है 98 factorial, 98 cancel, 2 cancel। So finally we are getting, calculation करो simple labor work, so we are getting 70 by 33 factorial। Now the both enter in the different section, सो P we enter in the different section। ओके, हम अगर डिफरेंट सेक्शन में तो 1 माइनस सेम सेक्शन, तो 1 में से सेम सेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट कर दो। सो फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट 1 माइनस
17/33. 1 minus 17/33. So 33 minus 17/33. So we are getting what? 16/33. So the probability of we enter the different section is 16/33. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा हाउ कैसे सेक्शन सेलेक्ट करने हैं। 40 और 60 के 2 क्लासेस हैं, तो 40 में से भी 2 होगा और 60 में से 2 आप दोनों होंगे, तभी वो सेम सेक्शन में होगा। और टोटल जो तरीके बन रहे हैं वो 100C2 से। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m/n फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। Now moving to the final question of today video lesson. The number of suitcase has 4 wheels. एक suitcase में 4 wheels हैं, each labeled with 10 digits. सारे में 10 digits अलग अलग labels हैं from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits. So lock को open करना है तो आपको 4 digit का कोई भी नंबर डालना है. No repeats, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. What is the probability of a person getting the right sequence? तो सही सीक्वेंस वो पर्सन फाइंड आउट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है सूटकेस को ओपन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। द नंबर ऑफ लॉक हैज़ 4 व्हील्स। जो लॉक्स के नंबर है उसमें 4 व्हील्स हैं, ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट नंबर, राइट? इट मीन्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू 9 तक। ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 डिफरेंट डिजिट। ओके, बिकॉज रिपीट्स नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ 10 डिजिट्स, सो वी कैन राइट 10C4। सो 4 ही डिजिट्स आपको लेने हैं 10 में से। नाउ ईच कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिफरेंट नंबर्स होना चाहिए, 4 डिफरेंट डिजिट्स होना चाहिए, राइट? कोई भी कॉम्बिनेशन आप करोगे अरेंज्ड इन 4 तरीके से आप करोगे, बिकॉज 1 2 3 आ 4 सकता है, 0 1 4 आ सकता है, 7 8 9 इस तरह से आ सकता है। सो वी नो दैट 4 फैक्टोरियल को राइट कर सकते n फैक्टोरियल, n-1 n-2 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विथ नो रिपीट्स, कोई रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। 4 डिजिट्स आप बना रहे हो तो 10C4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, बिकॉज 4 तरीके से आप डिजिट्स फॉर्म कर सकते हो। सो यू कैन सिंप्लीफाई 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 10 minus 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल। सो यू आर गेटिंग 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल कैंसल। सो फाइनली गेटिंग द मल्टीप्लीकेशन 5040। देयर इज़ ओनली वन, एक ही तरीके से हो सकता है, बिकॉज टोटल तरीके होंगे 5040। सो द नंबर वी कैन ओपन द सूटकेस, द रिक्वायर्ड probability will be what? 1/5040. Okay students, here we are completing today video lessons. Hope you have understood. Students, we know that practice makes a man perfect. You will have to practice. If you are not practicing these things, you can't do anything, because maths or statistics is the part of mathematics. Statistics is the part of mathematics, so you will have to practice again and again to make the mastery over maths or statistics.